428. Sorry, 4. Oh, sorry. I did a mistake. 428. Yes. So, hello and welcome everyone. We have with us Ms. Shivani Gupta. She has got rank 428 in the Civil Service Examination 2023. So first of all, congratulations, Shivani. Many congratulations on getting a Thank you good so rank. much. So, कैसा लग रहा है आपको? How are you feeling? सर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट फीलिंग है, लाइक एज यू से लाइफ टाइम अवार्ड के जैसे है. इट्स अ वेरी डिफरेंट गुड फीलिंग. Wonderful. So, can you please share your journey of your academics, then post academics? आपने कैसे यूपीएससी को चूज किया और यूपीएससी के जर्नी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? जस्ट ब्रीफली, लाइक फ्रॉम स्कूलिंग टिल रिजल्ट. Yes, sir. Sir, doing UPSC is my childhood dream only, but I came to know about this only after doing my graduation only, when I started taking coaching and started preparing for this. So, telling about my educational background, I have done BCom honors from DAV College, Chandigarh, and basically I'm from Panchkula district of Haryana. And after doing graduation, I immediately started preparing for civil services, and this is my fifth attempt, and fifth attempt, first interview and third means for UPSC. वंडरफुल. तो आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, और Yes. आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो बेसिकली आपने किस तरह से अप्रोच किया इनिशियली? लाइक डिड यू गो फॉर सम कोचिंग और सेल्फ स्टडी? Yes, sir. Sir, initially I go for only, and sir, I took coaching from local only, from Panchkula, Vivek IS Career Academy. So I took coaching from that for 1 year approx. That was mainly concentrated about the prelims only. For mains, I mainly relied upon the online material. It is available and self study only. So I think that's the. ओके, वंडरफुल. तो बेसिकली जैसे आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तो इनिशियल अटेम्प्ट में आपने क्या, आपको लगा कि व्हाट वाज मिसिंग थिंग ब्रॉडली, और ऐसा क्या आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट में रहा कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया? Yes, sir. Sir, starting with my first attempt, उस time I was not prepared at all. Like ऐसे ही दे देते attempt, syllabus भी नहीं complete हुआ था. So I was like दे देते हैं, just at least ऐसे. So prelims नहीं हुआ as expected. But in second attempt, I cleared prelims and mains only by a very certain margin, like 15 to 20 marks I missed in mains. And sir, in third attempt, I really worked upon the mains answer writing practice and everything. I did everything, but that time was quite huge, like 60 to 70 marks. So I was really very shocked, like ऐसे कैसे हम्म. हुआ. So sir, in the fourth attempt, I missed prelims by point, I think 2 marks, 0.2 marks. Just maybe that's the overconfidence of clearing prelims every time. So that's the reason. But sir, in fifth attempt, I worked upon my prelims part also. Like I have practiced nearly 50 to 60 tests for the prelims. And sir, for mains, I practiced. I improved upon my essay and GS4 parts, GS4 ethics paper, because that was my, I think, the weakness that made me out of the list. So I think that I have worked upon this. राइट. तो एक मैसेज जो आपकी जर्नी से मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक स्टेज पे आपने अर्न किया है, लाइक हर एक स्टेज को आपने अर्न किया है. आपने प्रीलिम्स में भी मिस आउट किया, मेंस में भी मिस आउट किया, तो और फिर आपने एक बार क्लियर भी किया, फिर मिस आउट कर दिया. एक बार कम मार्जिन से क्लियर छुटा तो अगली बार ज्यादा मार्जिन से छुटा. तो कहीं ना कहीं आपने वो पूरा स्ट्रगल देखा है जो एक बहुत नॉर्मल एस्पिरेंट का होता है ना, कि जहाँ पे निगाह छुटी वहीं पे जो है आपकी गड़बड़ हुई. यानी कि Yes. पूरा जो Yes. किसी का जो एक फंडा होता है कि यू हैव टू बी ऑन टोस, है ना. जो चीज आपकी Yes. ऑलरेडी क्लियर भी हो चुकी है उसको भी आपको ग्रांटेड नहीं लेके चलना है. Yes. Yes, sir. Definitely. वंडरफुल. तो कहीं ना कहीं जो फिफ्थ अटेम्प्ट है आपका है, ये पूरा एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है प्रीवियस अटेम्प्ट्स का. जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने मिस्टेक की Yes, थी, sir. बट आपने वो मिस्टेक रिपीट नहीं की. Yes, sir. Cumulative knowledge के basis पे, I think I have scored in mains and interview only.
राइट। तो इन प्रीलिम्स में पहले आपने क्वालिफाई भी किया और फिर आप मिस भी कर गई, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? शायद वही गलतियां लोग करते हैं जो बाबा प्रीलिम्स में फेल भी होते हैं। यस 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 सर, डेफिनेटली सर, ओवर कॉन्फिडेंस वो आ जाता है कि बिकॉज यू थिंक दैट ओ ठीक है अब हमने क्रैक कर लिया कि हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स, बट सर ऐसा नहीं होता कि एवरी टाइम यूपीएससी गिव्स यू अ सरप्राइज, and that unpredictable element will always be there in UPSC. So don't take anything for granted, just be on your toes. राइट। ओके। और मेंस में स्पेशली जीएस ऐसे एथिक्स में, जैसे आपने बोला कि आपने आंसर राइटिंग के मार्क्स इंप्रूव किए, पहले आपका कम Yes. मार्जिन से रुका था, फिर ज्यादा मार्जिन से रुका, उसके बाद आपने इस बार फाइनली लिस्ट में आपका नाम आया। तो मेंस में ऐसे क्या क्रिटिकल एक या दो चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर करती हैं? Yes, sir. So starting with the essay, I think this time what I have worked upon is that I have added many things like real life examples. I have added many things, shloks, poetry, poems. I think that I have added. So that has landed me a score of I think 112 or 113. Although I was expecting more marks, but considering scores that students are getting this time in two digits, I think this is a very decent score. So I think I have added these things in my essay. And sir, talking about GS4 ethics part, that thing also I included many real civil servants examples, and also the daily life examples that you see around you. Inculcating that in GS4 portion has helped me a lot, because earlier I was just relying upon the bookish knowledge, the theoretical part that we used to read upon this, and this time I've worked upon, so that has helped me. And sir, I would also like to mention that in optional commerce and accountancy, I have added the real life examples from the newspapers, and I've also used the chat GPT. That has improved my optional scores as well. ओके, तो आपने हर एक चीज पे बहुत ही स्पेसिफिकली काम किया है। Yes sir. Yes sir. वंडरफुल। शिवानी, जस्ट ए स्मॉल इंटरप्शन। एक्चुअली अभी इतना क्लियर नहीं आया, नेटवर्क कुछ इशू है। आई लेट मी Yes चेक कि शायद मेरा वाईफाई तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। हम ये yes कोशिश yes करते yes हैं, है ना? yes yes sir. Okay. यस यस। तो मैंने अपनी वाईफाई को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है, प्रोबेबली कुछ इशू रहा हो मेरी तरफ से। वंडरफुल। सो शिवानी, आपने ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज किया है, और आप बीकॉम बैकग्राउंड से आते हैं, और बीकॉम भी आपने एक मुझे लगता है बहुत ही एक जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है बीकॉम बैकग्राउंड से, लाइक इट्स नॉट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपने सीए बैकग्राउंड से भी नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल क्यों चूज करें? व्हाई नॉट सोशियोलॉजी, व्हाई नॉट एनी अदर ऑप्शनल? और आपको नहीं लगता है कि आप बीकॉम हैं और यहाँ पर सीए स्टूडेंट भी रहे होंगे जिनसे आपको कंपटीशन फील हुआ होगा, तो आपने कैसे इस तरह की चीजें टैकल की? ये जो माइंड वाला गेम होता है, बहुत बड़ा गेम होता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है कुछ, सीए से कंपटीशन, तो ये कैसे आपने ओवरकम की? उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट देखा है, आप निकाला आपने। सॉरी, आप म्यूट पर हैं शिवानी। Sir. Sir, the first thing I would like to mention is that the exam of UPSC is not for the specialist. It is a journalist exam. There is nothing correlation with that, like only CAs take upon this optional or anything, because this exam requires generalization, not specialization. And sir, I think most of the syllabus overlap with your graduation only. Only a little bit part needs to be added, but otherwise I think paper one is mostly common to both CAs and the normal graduates. Paper two, everybody has to prepare, irrespective of their background. So I think that's why I have opted for this. And considering that I was not much interested into sociological and pub ed, that thing, so I
think it's a safer side for the graduates of commerce who have a good hold over this numericals and this accounting portion. So definitely they should take this option. राइट। तो बेसिकली जैसे आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपका खुद का सब्जेक्ट है तो वहां पर कंफर्टेबल आप फील करते हो। Yes, sir. आपका एक सेफर Yes, sir. साइड होता है कि आई नो द थिंग्स और सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, तो देन हाउ आपको ये नहीं लगता कि आप कंप्लीटली कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हो आउट ऑफ द बुक्स, आपको कुछ जीरो Yes, से sir. पढ़ना पड़ेगा। एंड Yes, sir. आपको ये लगता है कि ठीक है कुछ चीजें कमजोर होंगी तो उसको ठीक कर लेंगे, एटलीस्ट Yes, हमारा खुद का सब्जेक्ट है तो उस पर काम कर पाएंगे, अगर ग्रेजुएशन में हमारी कुछ कमी रही है तो अब उसको ठीक कर लेंगे। yes. तो ये ठीक कर बहुत लेंगे। बड़ा Yes. एक मेंटल गेम है जिसमें आपकी खुद की डिटर्मिनेशन, खुद का साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना। और जैसे मैंने Yes. बताया कि कंसिडरिंग दैट यू डोंट कम फ्रॉम डीयू, है ना, एक बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि डीयू के Yes. लोग कॉमर्स वाले क्लियर कर सकते हैं, Yes. एसआरसीसी वाले क्लियर कर सकते हैं। Yes. तो यू आर Yes, sir. इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल हु कम फ्रॉम नॉन दिल्ली बैकग्राउंड, फ्रॉम नॉन सीए बैकग्राउंड, नॉन पीजी बैकग्राउंड। तो मतलब आपने इतने सिंपल बैकग्राउंड से और एक अच्छी Yes. रैंक ली है, तो आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। Yes, sir. I would like to add one thing. Like, I have taken this option also because मेरा बहुत ज़्यादा interest है इस option में. So after reading the GS portion, whenever I used to do numericals, it's like giving a fresh breath to yourself. So I think that has helped me a lot. So interest होने से ज़्यादा matter करता है. If you are interested in that portion, so it वेरी ट्रू। आपने 5 साल feels से पढ़ा है और जैसे आपने बोला कि जब अपने खुद का सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक कहीं ना कहीं it, कॉन्फिडेंस आता है, फ्रेश ब्रेथ ऑफ yes, sir. लाइफ, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि आपका जीएस पढ़ पढ़ के जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, Yes, sir. आर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं Yes. आता है, Right. जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, और यहाँ पे आके लगता है कि सब कुछ आता है मुझे। तो एक जो एक कॉन्फिडेंस Uh, बूस्टर वाला जो रोल होता है ना ऑप्शनल का अपने खुद के सब्जेक्ट का, वो आपको जीएस में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी समझ में कोई कमी नहीं है, मतलब मैं एज ए पर्सन मैं समझ सकती हूँ चीजों को, लेकिन सब्जेक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। yes. राइट। अदरवाइज Yes, हम sir. सब्जेक्ट वो उठा के वो सब्जेक्ट ले लेंगे जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, Interest. तो हमें अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद मैं सूट नहीं करता हूँ इस यूपीएससी को। Yes. बहुत अच्छी बात Right. आपने इसकी। Yes. कमिंग टू द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन ओनली, एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है बुक लिस्ट। तो आपने ग्रेजुएशन की बुक लिस्ट आपने यूज की थी, और इसको कैसे आपने सप्लीमेंट किया अदर सोर्सेज से? क्या आपको लगता है कि अप्रोच होना चाहिए सोर्सेज को लेकर के? Yes, sir. For sources, I would like to add one thing that what I used to do is that I used to take a topic wise approach. Like I used to take one topic. So जहाँ से भी उसकी information अच्छी लगती है, like I use internet, I use chat GPT, I use commerce graduate की books, and I also used even IPCC material for the numerical portions and everything. So I think going topic wise would be better instead of reading all the books, because बुक्स में सब मैटर नहीं होता, वो अपडेटेड नहीं होते. यू हैव टू अपडेट इट बाय योरसेल्फ विद द करंट एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक पिक एवरी each and every topic and prepare material upon that and just revise and update that with the current तो वी portion हैव from टू मेक द present. सिलेबस एज द बेस। जो हमारा सिलेबस है Yes, sir. टॉपिक को हम पिक करें और उसके कंटेंट कंपाइल करें, या फिर कहीं कंपाइल मिल जाए तो उसको यूज कर लें, मतलब हमें टॉपिक वाइज जाना है, ये Yes, सबसे इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल। yes, yes, sir. Yes, sir. सेकंड इज, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल पसंद है और Yes, sir. थ्योरी भी यहाँ पे होती है, तो कुछ लोगों के लिए न्यूमेरिकल Yes, बड़ा अच्छा होता है, कुछ की थ्योरी बड़ी अच्छी होती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन की दोनों ही अच्छी हो, ये बड़ा एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है। yes, तो ये आपने yes, sir. कैसे कैसे इसको टैकल किया कि पेपर 1 में आपने न्यूमेरिकल भी की, थ्योरी भी की, Yes, sir. पेपर 2 तो पूरा थ्योरी है ही। Yes, yes, sir. Yes. सर यही मेरी मिस्टेक रही है मेरे प्रीवियस में. That has landed me a score of I think 100 or 105 something in my paper 1, because I हम्म। used to do only numerical portion. Theory portion में बहुत बोरिंग लगता था, सॉरी टू से दिस, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता होगा, बिकॉज जिसको न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट है that would find the theoretical portion little bit boring. So एक्चुअली I didn't focus much upon that. I was thinking like that if I do numerical, then I'll get marks and everything. But this time I have understood the importance of theoretical part. So I think a balance between both is needed. And I think now, as per the pattern is going, I think the theoretical portion needs to be prepared more as compared to the यस, numericals. इनफैक्ट जो 100 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वो तो पूरा थ्योरी होता है, एंड Theory. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो आउट ऑफ 3 क्वेश्चन यू हैव टू चूज थ्योरी आल्सो।
नॉट ओनली न्यूमेरिकल। सो डेफिनेटली। और आपने बोला कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट कम होता है। इंटरेस्ट कम इसलिए होता है क्योंकि हमारा सारी Yes, एनर्जी न्यूमेरिकल में चली जाती है। तो समहाउ numericals वी हैव चला टू जाता है। बैलेंस कि पहले सपोज हमने प्रोसेस क्वेश्चन की, तो प्रोसेस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी किया और साथ में हमने थ्योरी भी कर लिया। उसके बाद ही फिर हम नेक्स्ट थ्योरी चैप्टर भी में करी। बढ़े, जहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़े जहाँ यस, पे न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरी करेंगे। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस क्वेश्चन न्यूमेरिकल, यस। एक्सटेंडेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, मार्जिनल क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी होंगी ही नहीं। क्योंकि मन में कॉन्फिडेंस होता बाद है में कि कभी नहीं हो होती। जाएगी, यस सर। एक बार उठा के कर लेंगे। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन यस निकाला। अपने सर। प्रीवियस ईयर की जो बुक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, उसको हमने कंपाइल करके एक थ्योरी का सेपरेट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है कि आपको थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता है, या थ्योरी का कंटेंट एक जगह अरेंज करना भी एक बड़ा यस, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े मेढ़े आते यस हैं। सर। तो वो यस सॉल्यूशन सर। से चीजें को, अगर सोर्सेज अच्छी हो तो आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। यस सर, डेफिनेटली सर। वही है कि मटेरियल की बहुत कमी है मार्केट में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द पेपर वन, द थ्योरेटिकल पोर्शन। थियोरेटिकल पोर्शन आई वो हमने थिंक सोल्व कर दिया। वैसे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन वी हैव प्रिपेयर्ड थ्योरी पार्ट कंप्लीटली, और वो yes, आगे से that's why you प्रॉब्लम made नहीं easy for the coming aspirants. It would be यस यस यस, very फ्यूचर के helpful लिए। to them. हाँ, हमने रिसेंटली किया है तो आगे के लिए काफी वो मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी के Yes sir. काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक्चुअली। थ्योरी जैसे इस बार देखिए, इनकम टैक्स में क्लबिंग रिपीट हो गया, Yes sir. और रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी बार रिपीट होता है इनकम टैक्स में। Repeat होता है। Yes, फाइनेंशियल yes, yes. मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब अगर अगर आप 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस वो कर लें, वहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। Yes sir. वेरी Repeat ट्रू। होते हैं। पेपर टू में अगेन इट इज अ थ्योरी पार्ट, वहां पे तो आप न्यूमेरिकल से काम नहीं चला सकते। और Yes sir. पेपर टू में यू नो देयर इज ए चैलेंज कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं। चलिए एवरेज मार्क्स तो ले आएंगे, जैसे आपने भी 3 बार मेंस दिए, तो आपने भी देखा होगा आपके मार्क्स एवरेज भी रहे होंगे। और इस बार आपके Yes. मार्क्स 129 मार्क्स है पेपर टू में, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इस बार के Yes. हिसाब से। हाईएस्ट स्कोर जो है थोड़ा इस बार कम रहा है पेपर टू में। तो Yes. 129 मार्क्स लाने के लिए आपने क्या चीज ऐड की जो आपको लगता है कि पेपर टू में मार्क्स एनहांस करने में हेल्प कर सकती है? Yes, sir. Sir, this time in paper two, I've added many current examples. Like I have a group of one or two people. There is, I think, Anil sir is there in that group. So we both made divided topics among them, and we used to search upon Chat GPT about the current examples, and also we used to extract the material from the business newspapers like Financial Express, Business Standards, and everything. So I think if you club them with the theoretical portion, that would help you in fetching the good marks. So I think this thing I have improved. Earlier I used to just rely upon the theoretical part, no nothing major राइट relevant or राइट। recent examples, nothing was at time I have worked upon that. वंडरफुल। इनफैक्ट थिंकर्स के नाम ऐड करने, कोटेशंस ऐड करना, Yes, कुछ questions, yes, कॉर्पोरेट केस स्टडीज ऐड करना, और जैसे आपने बताया करंट अफेयर्स के एग्जांपल ऐड करना, तो ये सब चीजें आपके आंसर को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। और यहाँ से एक्चुअली में yes sir. एग्जाम को लगता है कि आपने रियली उस टॉपिक के ऊपर थॉट आउट किया है, और आपका जो व्यू है वो एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Yes sir. आंसर राइटिंग Yes. की क्या इंपॉर्टेंस है? लाइक शुड शुड द स्टूडेंट्स डू द आंसर राइटिंग एट द लास्ट मोमेंट, कि पहले सिलेबस पूरा कर लें, या सिलेबस के साथ साथ में आंसर राइटिंग करनी चाहिए? सर आई थिंक सिलेबस के साथ साथ ही करनी बेटर होती है, बिकॉज सिलेबस इज कभी कभी खत्म नहीं होगा, इट इज नेवर एंडिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला सिलेबस है। सो इफ यू थिंक दैट एक बार सिलेबस हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे, वो दिन कभी नहीं आता है। और ये मैंने खुद फेस की है सिचुएशन इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स। सो आई थिंक एज सून एज द प्रीलिम्स रिजल्ट कम्स, you should be on your toes with respect to answer writing practice. चाहे एक आंसर लिखना हो दिन का, but at least you should start with answer writing practice as soon as you can. वेरी ट्रू। आप एक टॉपिक पढ़िए और फिर उसी टॉपिक के ऊपर आंसर लिखिए। मीन्स डोंट Yes sir. वेट दैट आई विल कंप्लीट द सब्जेक्ट, क्योंकि जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो एक चैलेंज ये आएगा कि आपको चीजें याद नहीं आ रही होंगी, आपको लगेगा कि Yes पहले sir. रिवाइज कर लेते हैं, और इतना सिलेबस आपको समय देता नहीं है, बिकॉज सिलेबस इज टू ह्यूज। तो आपको Yes sir. कंटेंट प्लस आंसर राइटिंग बोथ हैव टू बी डन साइमल्टेनियसली। वेरी ट्रू। Yes. Sir, I would like to add one thing with respect to this answer writing, because nowadays paper is coming quite lengthy. So this time what I've added so that I would complete papers on time, like exam morning shift se pehle I used to write one answer in
my maximum speed possible so that I would come in the environment of writing. So ऐसा ना हो कि जब वहां पर एग्जाम हॉल में you write first answer तो तुम्हें थोड़ा सा फ्लो में दिक्कत आएगी, like हम्म। in second third इनिशियल answer हिकअप you ना, come इनिशियल to हिकअप ना, वेरी गुड, वेरी, ये एग्जाम डे वाली स्ट्रेटजी है जो बहुत लोग yes यूज sir. करते हैं। और That has helped me a lot sir this time. और ये सब जगह आपको मतलब एक तरह से इट विल हेल्प यू सेव एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, बिकॉज Yes इन yes sir, 30 मिनट 40 मिनट आप इसी में स्ट्रगल करते रहते हो कि हाथ नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा बहुत है, कुछ सोच के yes लिखना yes पड़ sir. रहा है, आपको भी Yes कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि 2 क्वेश्चन हुए आधे घंटे में, तो वो एक yes, फ्लो भी हो जाता है। फ्लो हो जाती है, yes sir. वंडरफुल। तो पेपर वन में न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में चॉइस आपने कैसे की? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 तो कंपलसरी है थ्योरी, बाकी Yes 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन, सॉरी बाकी 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं, तो हाउ डिड यू yes गो sir. अबाउट, लाइक डिड यू स्किप? अच्छा, वन मोर थिंग कि आपने जब न्यूमेरिकल किए थे तो कुछ बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, अमेलगमेशन होता है, कुछ लोग इनकम टैक्स से न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं, तो आपने भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो की थी या आपने सब कुछ किया था और सब कुछ आपने बराबर ही फोकस किया था? Sir, in my previous attempts, I used to attempt only the income tax वाला part because वो मेरा part काफी अच्छा है income tax वाला. But now considering this fifth attempt, I have more time. So I prepared everything, all the numericals. Because interest भी है तो मजा भी आता है, तो I would think कि सब prepare कर लेते हैं. फिर theory जो भी आती होगी, जो भी interest होगा theory में, so I हम्म। would choose on the basis of that. राइट। तो जैसे इस बार क्वेश्चन आया था प्रोसेस कॉस्टिंग का, लेंदी क्वेश्चन था, तो आपने उसको देख के एलिमिनेट कर Yes, sir. दिया था या उससे बेटर क्वेश्चन आपको पहले मिल चुके थे? सर मेडिकल सब आते थे बट कंसीडरिंग द थ्योरी पोर्शन मेरे को उस वाले क्वेश्चन में कम आता था, सो आई अटेम्प्टेड द इनकम टैक्स वाला पोर्शन. राइट। आपको लगता है कि जिनका न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे आपका न्यूमेरिकल अच्छा है, काफी लोग ऐसे होते यस हैं सर. जो बीबीए बैकग्राउंड से होते हैं या यस बीकॉम सर. किए लेकिन न्यूमेरिकल से डर लगता है अभी भी, तो यस आपको लगता है सर. वो लोग भी पेपर वन में स्कोर कर सकते हैं? ये सर डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं बिकॉज सर जो पेपर सॉरी पार्ट 2 है पेपर 1, फाइनेंशियल मार्केट वाला, फाइनेंशियल मार्केट, हम्म। ये डिविडेंड एंड राइट। एवरीथिंग, सर उसका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत शॉर्ट है और हम्म। टाइम भी बहुत कम लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने. सो आई थिंक इफ यू प्रिपेयर दैट पोर्शन वेरी वेल and choose only the selected topics from part 1, the costing and amalgamation, income tax. So I think in this way you can score better for those who are not numericals. राइट, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि 2-3 बार इसको टच किया है, फिर भी Yes sir. एक Yes, लास्ट 45 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमारे पास में होते हैं 1979 yes, से 2023 के। yes, yes sir. आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस करना चाहिए या पूरे सिलेबस को हम बराबर प्रिपेयर करें? No sir, PYQs I think are the base with respect to every optional, because somehow after every 2 or 3 years the questions get repeated as we हम्म। can see. So I think वो तो बहुत अच्छे से prepare करने चाहिए at least for the last 10 years. राइट, रिपीट होते हैं काफी क्वेश्चंस, और Yes sir. न्यूमेरिकल में भी रिपीट होते हैं, न्यूमेरिकल में भी Yes. एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट only होते हैं, जैसे figures figures चेंज होती हैं बट एज सच क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है. राइट, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट का, वो 3 बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, 2008, Yes. 2016, 2018, सेम क्वेश्चन रिपीटेड 3 टाइम्स। Same. इस Yes. तरह के जो एरियाज हैं वो आपके पेपर के मार्क्स को एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पे कंफर्ट है, Yes. वहां पे टाइम सेव करके, और Yes. उस टाइम को आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। Yes sir. वंडरफुल। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है सर इफ यू गेट टू सी सच क्वेश्चंस. हाँ, राइट, वो लगता है ना कि भाई टाइम सेव हो जाएगा यहाँ से, और 100% ठीक हो रहा है मेरा क्वेश्चन, अब मैं आगे फोकस कर सकता हूँ, आपका एक एरिया जो है स्ट्रॉन्ग हो गया आपके पेपर का। यस सर. यस सर. इसके अलावा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको कोई और चीज जो आपको परेशान की, जिस चीज ने आपको कोई चैलेंज फेस होता था, आपको लगता है कि कोई और चीज जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए, स्टूडेंट्स को? सर मेरे साथ ऑप्शनल में मोस्टली यही चीज होती थी, पेपर 1 की थ्योरी से रिलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा इशू फेस करती थी कंटेंट वाइज एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक मेजर इशू यही था ऑप्शनल में. एंड आई थिंक रेस्ट इज एवरीथिंग ओके बिकॉज पेपर 2 की थ्योरी बहुत अलग होती है पेपर 1 से. You can relate with the real life examples like trade union, industrial relations, human resource management. So बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होती है थोड़ी, तो सब
कर लेते हैं, but paper one is quite difficult for everyone. Either some, for some it is numerical part, for some it is theoretical part. राइट The राइट राइट। theoretical part that has तो थोड़ा troubled सा me अगर always. फोकस करें तो इसमें नंबर अच्छे आ भी सकते हैं, जैसे इस बार Yes, 150 मार्क्स कई लोगों ने टच किए। तो yes, अगर हम कुछ उसमें मतलब बायसनेस ना रखें और हम सही तरह से फोकस करें तो मार्क्स भी स्कोरिंग वाला पेपर है ये। yes, scoring paper, yes, definitely. अच्छा, एक मैं आपसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको जीएस में आपको कौन सा एरिया डिफिकल्ट लगता है, जैसे साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, मीडियावल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आप वो कैसे टैकल करती थी? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैं एस्पिरेंट के अंदर देखता हूँ, मैं भी अपनी खुद की जर्नी में देखता हूँ कि मुझे साइंस एंड टेक से बड़ा डर लगता था। Same goes for me, sir. Sir, the new phobia for me, be it in the prelims part or in the part. Like, I find it very difficult. And apart from science and tech, it is the ancient and medieval history for me. I find it very boring and not interested. But yes, but I have so much work because you have, if you give time. Shivani, I think there is some interruption. Last 10-15 seconds, I was not able to hear. So, shall I repeat, sir? Yeah, you can repeat. You can repeat. Yes, sir. Sir, yes, apart from science and tech, it is the ancient and medieval history for me that has troubled me always, in the prelims as well as in the mains part. But yes, since I have so many times, I have this is my fifth attempt. So I have, in the 5 years, I have made my basics very strong. So if you give time upon these subjects, it will definitely gets improved. And interest बनाना पड़ता है थोड़ा सर, बाकी तो हो ही हम्म जाता है if you develop हम्म। interest in राइट 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 राइट। बट ये है कि स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्ग करें, जैसे हमारे लिए पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो that. वहां पे हम ज्यादा फोकस करें और ये एरियाज Yes, को अपने एवरेज रखें, जो average, डबल right? एरियाज, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इन पे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। Yes, sir. हम्म। Yes, correct। आपका इंटरव्यू का स्कोर भी काफी अच्छा रहा है, 200 मार्क्स। yes, नो, yes, sir. 200 इटसेल्फ इज ए वंडरफुल स्कोर। तो Yes, sir. मुझे याद है आपने मॉक में साथ दिया था, और उस टाइम पे आप Yes, आपका पर्सनालिटी वाइज तो नो डाउट वंडरफुल पर्सनालिटी, और आप लेकिन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के। yes, तो yes, sir. थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे, कॉमर्स से क्वेश्चंस पूछे थे क्या, आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे थे क्या, और आपको क्या लगता है कि किस चीज से आपको मार्क्स मिले होंगे, आपको क्या लगता है? Yes, sir. Sir, first of all, I would like to give a big thanks to, for taking my interview, and I think all the big credit goes to you for scoring me, for that has helped me in scoring 200 marks in my interview. Because sir, before taking a session with you, before taking the mock interview with you, I was very underconfident. I have not prepared my optional very well. I've all the time I have given to my GS and hobby section, but after having a session with you, I prepared all the questions that you have asked from me, and उसके अलावा सर मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, and by luck all my interview was based upon this optional only, and I was very confident, like जो भी सर ने पूछा, that the Sanjay Verma sir, I got Sanjay Verma sir board, so he was asking almost on the same lines on those questions, so I was very confident, so अंदर से वहीं से confidence आ जाता है, so if you're confident then naturally your personality would be more enhanced, so I think that has helped me. And sir, also the thing which I would say the highlight of my interview was that in hobby section I have mentioned the mandala art. I used to draw the mandala हम्म। art. So in that the Sanjay Verma sir told me that you draw mandala art side by side and simultaneously will take your interview. So I think that he was checking the multi talented ability of mine, and at the end he got very impressed, like he was very impressed about the mandala art that I have drawn the India's map. As he started asking from the India something India question related to India only. So I the first thing that comes in my mind is India only. So I started drawing India only. So I think with that he got very impressed. ओके, वंडरफुल। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो भी अच्छी हो गई,
और आपका जो Yes, टेक्निकल पार्ट है वो भी अच्छा हो गया, तो दोनों का एक yes, sir. परफेक्ट कॉम्बिनेशन, somehow that gave you the boost. Yes, sir. Yes, sir. वंडरफुल वंडरफुल। इंटरव्यू के Yes. बारे में आपने जैसे बताया कि टेक्निकल क्वेश्चन थे, तो किस तरह के क्वेश्चन थे कॉमर्स से, किस? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. Sir, first of all, there were questions from auditing portion. The one member asked me, what is the difference between disclaimer of opinion and the unqualified report? हम्म। And he also asked the other type of reports that are being prepared by the auditor. And apart from this, he's asked me about the qualifications of auditor, like anyone can be appointed as auditor or not. And sir, apart from this auditing thing, one member asked me what is the difference between the accounting standards that are being practiced in India and in US. And next he asked me what is the disclosure principle and what are some other principles like materiality, going concern principle of the accounting. Then sir, he asked me like what is your opinion, like we should shift to the international standards that are being practiced by IASB, or we should be following our Indian accounting standard. So I told them that India has already extracted the standards from international practice only and has molded it as per the suitability of the India only. Yes, sir. These are the kind of, and sir, yes, sir. From the regulatory sector, he asked me, like, what are the different regulatory agencies in India, and arrange them in order. And sir, another question he asked me related to the Paytm issue, because that time it was very prevalent or highlighted. राइट राइट, हमने So मुझे याद है मॉक इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चन पूछा yes, था sir. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें आपने आंसर Yes, दिया sir. था विजय माल्या का, Yes, और उसमें शायद yes, हमारा sir. डिस्कशन हुआ था कि रिसेंट वाले इश्यूज को भी मेंशन कर Recent सकते wale. Yes, sir. हैं, Yes, क्योंकि sir. हम उस समय पे पेटीएम चल रहा था, जेट एयरवेज, Jet. और Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ये सब डिस्कस किया था हमने, बायजूस वाला ये सब बैजूस, हाँ डिस्कस किया था. राइट So राइट। तो मैंने ये सब भी इंक्लूड किया था. He was asking for Paytm, but I have included them also because he was asking like ऐसे steps लेने चाहिए because Paytm is like quite a growing business और काफी हम्म। ज्यादा उसने financial inclusion की है. So is हम्म। it right on part of RBI doing that or everything? हम्म। So ये सब पूछा था. राइट राइट, तो आपका जो सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस था, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर Yes. निकला, तो ये आई थिंक थोड़ा इसमें लक भी होता है। Yes. Yes. वी शुड थैंक This गॉड। time luck is on my side. Yes, sir. या मतलब कि आपने जो प्रिपेयर किया वहीं से क्वेश्चन आ गया और आपने कॉन्फिडेंस से आंसर दे दिया। Yes, कुछ sir. चीजें होती हैं जो But sir, भगवान के हाथ में I होती would हैं। like to mention अगर अगर सेशन नहीं होता आपके साथ, so I don't think मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में ऑप्शन प्रिपेयर किया होता अपना. मतलब I was very under हम्म। confident about this thing as I've mentioned in my mock interview as well. But हम्म। yes sir, उसके बाद बहुत ज्यादा confidence boost हुआ. फिर लगा कन्विक्शन आ कि जाती है, मतलब एक इस कन्विक्शन आ ऑप्शन. जाती है कि एक एक्सपर्ट Yes से sir. मैंने डिस्कस कर लिया है और सारे पर्सपेक्टिव मेरे कवर हो गए हैं। और मेरे इंटरव्यू में Yes. मैंने कोशिश की थी कि मैं इकोनॉमिक्स को भी टच करूं, Yes कॉमर्स sir. को भी टच करूं, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी टच करूं, तो कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिक्स वाला जो बैकग्राउंड होता है, और एक जो एक काफी वेग एरिया होता है, ग्रे एरिया होता है, जहाँ पे हमारी ओपिनियन बिल्ड करने में हमें थोड़ा एक हिचक होती है कि हम एक तरफ का स्टेप ना लें, और एग्जाम्पल्स वगैरह, तो काफी मतलब मैंने उसमें रिसर्च की थी इन चीजों पे, और मैं इकोनॉमिक्स वगैरह काफी करता रहता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत नेचुरल था। मुझे इनफैक्ट ये Yes. क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो आपको पता ही होने चाहिए एज ए यूपीएससी पता ही. एस्पिरेंट। अगर आप Yes. यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो ये तो पता ही होने चाहिए। तो आई थिंक वही चीज यूपीएससी बोर्ड भी चेक करता है आपसे, कि ये चीज Check आपको it. पता होनी चाहिए, जो ग्रे एरियाज है जहाँ पर ओपिनियन बिल्डिंग वाला काम है, कि आर वी Yes. रेगुलेटरी, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कहीं हम Yes sir. लाइसेंस राज तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये Yes sir. ग्रे एरियाज है जहाँ पर आपको रियली पता भी होना चाहिए। Yes sir. Yes sir. वंडरफुल वंडरफुल। एनी अदर एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव, स्पेशली टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स? तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? Yes, sir, sir. One message that I would like to give is that the people from the commerce background are very underconfident about their optional subject because they think that it is not scoring. But considering this time, I think Sujawal Jagga sir has scored very good marks. So यस I यस। think you should all take inspiration from that. And I think everything depends upon your interest. So study whatever you study with interest because अगर आपका interest होगा so definitely reward आपको मिलेगा sooner or later. So just be consistent, be dedicated and be focused upon these things. वेरी ट्रू। और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप तो सुपरस्टार हैं, 200 प्लस मटेरियल
सुपरस्टार। एंड यू नो Yes, पता है sir. क्यों? क्योंकि आप हम्बल बैकग्राउंड, मतलब आप बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जनरल लाइक Yes, नेक्स्ट डोर, है ना? आपके yes, प्रोफाइल में sir. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बोले कि यार बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, इनके तो मार्क्स आने Yes, हैं। तो ये चीज बड़ी yes, इंस्पायर करती है मुझे। तो क्या मैसेज yes. देना चाहोगे आप इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी, बी रियल। जो आपकी पर्सनैलिटी है वैसे ही देना। सर मैंने एक्चुअल में मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ ऑप्शनल का आपके साथ एक इंटरव्यू दिया था, और एक मैंने इन पर्सन इंटरव्यू दिया था जाके। इसके मॉक। अलावा आई हैव नॉट गिवन, हाँ, यस, मॉक इंटरव्यू, सॉरी, आपने मॉक इसके अलावा इंटरव्यू। कोई मौका ही नहीं दिया, मतलब कोई पैनल ये वो कुछ नहीं? नो सर, नथिंग नथिंग सर। ओ, पैनल भी दिल्ली में तो कुछ भी नहीं दिया। दिल्ली में सिर्फ आपके साथ ऑप्शनल का हुआ था। बाकी पंचकूला से, जहां से मैंने प्रीलिम्स कोचिंग और ली थी, वहां से। मेरे साथ भी ऑनलाइन ही हुआ था आपका मॉक। यस सर, यस सर। हम्म। वहां पर बस एक इन पर्सन इंटरव्यू था, एक आपके साथ ऑनलाइन। दैट्स इट। सो आई थिंक मतलब बी रियल। ओरिजिनलिटी, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी यस बात को, कि आप जो है मतलब यू बी योरसेल्फ बेसिकली। यस सर, मोटिवेशन बी नहीं योर्स। करना है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा वो भी करने का फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को यस, आर्टिफिशियल बनाने का फायदा नहीं है। और मैं आर्टिफिशियल, देख रहा यस, हूँ कि ओरिजिनलिटी रिवार्ड की जाती है, यस, ओरिजिनलिटी रिवार्ड की जाती है। यस सर, आदित्य श्रीवास्तव की रैंक 1 है, उनके भी 200 मार्क्स हैं। और यस सर। उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया कि सर ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है। जो मैंने उनके ओरिजिनलिटी, साथ यस, में इंटरव्यू पे काम किया था उनके साथ में, तो यस, मेरा भी यही रिव्यू रहता है कि बी योरसेल्फ। बहुत ज्यादा बी पैनल योरसेल्फ, मॉक्स, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज, 10 इंटरव्यू 20 इंटरव्यू, मार्क्स नहीं चेंज होने वाले। जो यस आपकी पर्सनैलिटी है सर। वो चेंज नहीं कर सकते आप। Yes, and sir, I would like to add one thing, like don't try to impress the board, because वो हम्म। पहचान लेते हैं कि the person is trying to be over smart and he is trying to हम्म। uh, overshadow something, or just be उनके लिए real. बच्चे हैं, उनके लिए हम बच्चे हैं, मतलब Yes sir, उनको सब पता होता है सर। सब पता होता सब है कि ये सब बच्चा जो है पता होता है। हमें अभी मतलब वो पटाने की कोशिश कर रहा है Yes हमें। sir, वो चीज मतलब गलत हो जाती है। सो बी रियल, जैसे नेचुरल बात करते हैं ना मॉक इंटरव्यूज में, या जैसे हम अभी, जस्ट बी लाइक दैट। बहुत सर कॉर्डियल होते हैं, बहुत ज्यादा और मतलब ये इनफॉर्म। वो एक और भी थॉट आता है कि स्माइलिंग होना चाहिए या सिंसियर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आदित्य श्रीवास्तव को जो मतलब उनका जो एक जो रैंक 1 है, उनका जो फर्स्ट वो है कि वो बहुत ज्यादा स्माइलिंग नहीं है, मतलब बहुत ही नेचुरल जैसे होता है ना, एक यस, यस सर, सीरियस वाला जो आउटलुक है, यस, सिंसियर वाला वो आउटलुक उनका है। उनको भी 200 मार्क्स यस, मिल गए। और यस, एक हमारे स्टूडेंट माधव अग्रवाल हैं, और यस सर, उनको 205 मार्क्स मिले हैं। उन्होंने भी यस, कॉमर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। इनफैक्ट उन्होंने तो कॉमर्स के लिए बहुत लोगों को सपोर्ट भी किया था हमारे साथ में। और यस सर, उनका भी जो आउटलुक था वो एक सिंसियर वाला था, और हल्का सा स्माइलिंग भी था, मतलब एक बहुत ही नेचुरल था। और आपका जो है इट वाज नेचुरल स्माइलिंग एंड ऑल। तो मुझे लगता है यस ये सर, बहुत चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती कि आप यस सर, ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। हम्म, डेफिनेटली सर। मतलब मैटर ये करता है कि आप नेचुरल हो, जो आप हो वही रहो, उसमें वही चेंज रहो, करने की कोशिश मत एग्जैक्ट, करो। वी डोंट ट्राई टू एग्जैक्ट। बी समवन एल्स। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। डायडम आईएएस से आपने सर्विसेज ली, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और मतलब कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? यस सर। सर डाइटमी के बारे में को देर से पता चला, सो आई जस्ट रिग्रेट अबाउट दैट। बट जब पता चला, आई थिंक द मेजर रोल दैट हैज प्लेड बाय डाइडमी आई एस इन माई पर्सनैलिटी टेस्ट। सो सर, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड for improving my mains marks upon further, because I'll be re-attempting. So I think I'll definitely be reconnecting with the academy for my improvement. So sir, I think you are helping many more aspirants and making their job very easier, especially with this commerce and accountancy optional. So a very big thanks to you, sir. इट्स माय प्रिविलेज एक्चुअली। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें एक्चुअली टीचर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। ये आप ही की मेहनत है, आप ही का रोल है। हमें तो क्रेडिट मिल जाता है, हाँ हमारी मेहनत होती है, बट वो तो हमारा प्रोफेशनल वर्क है। Yes, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो किस्मत है, उससे हमें भी क्रेडिट मिल जाता है। तो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज यू ऑल्सो। और मैं आपकी मैं बोलूँ इस अटेम्प्ट में आपकी स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एट पर्सनल लेवल। नो, मुझे yes. आप एग्जांपल देने के लिए बहुत मतलब बहुत जगह मैं आप एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर शिवानी क्रैक कर सकती है तो कोई भी क्रैक कर सकता है। और आपका एग्जांपल कोई ऐसा सुपरफिशियल एग्जांपल नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आए और क्लियर कर लिया। मतलब आपका एग्जांपल उन लोगों के लिए भी है जो स्ट्रगलिंग फेस में है। तो इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन Yes, है sir. कि अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में थे, जब जैसे पहले आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, फिर मेंस छूट गया, फिर मेंस छूट गया, फिर Yes, sir. प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये यूपीएससी में गलत फंस गए, लगा होगा कभी? सर, यस सर। सर एक पॉइंट आता है, मतलब
for me that point was when in my fourth attempt I was not able to crack prelims. So I think बहुत that वो was the बहुत ज्यादा डैम्पनर रहा होगा मतलब। ज़्यादा, yes sir. After हम्म giving two mains, when you are not able to crack prelims, it was quite depressing. हम्म But yes sir, if you are motivated and focused, sir, then nothing can stop you. Because sir, one thing I believe in, that hard work always pays off. Sooner or later, you will definitely get the outcome and सही result में of your मतलब ये efforts. यूपीएससी ना ये पूरा स्नेक लीडर वाला गेम है कि एक बार आपको ऊपर पहुंचा देगा फिर नीचे Yes पहुंचा sir. देगा, फिर ऊपर नीचे पहुंचा जाना. देगा फिर नीचे पहुंचा देगा, Yes sir. और Yes sir. फाइनली मतलब अगर आपको ऊपर पहुंचाना है तो पहुंचा के ही छोड़ेगा आपको। पहुंचा के आपकी भी yes तरह sir. स्टोरी एक आप ही के बैचमेट हैं, रैंक 229, विजय राघव गोयल, वो भी हमारे स्टूडेंट है। तो उनका भी फिफ्थ अटेम्प्ट था और फोर्थ में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो आपकी जो स्टोरी है वो बहुत मैच करती है कि फोर्थ अटेम्प्ट तक तो ये नहीं पता Yes कि sir. प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा यार, ये सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है इंटरव्यू तो Yes sir. बोल ही नहीं आई, तो होप फिर में तो होप चली जाती है. होप चली जाती है। और उसमें ऐसा भी लगता होगा कि यार ये होप सीए चली कर जाती है. लेते या कुछ एमबीए कर लेते, यूपीएससी के चक्कर में फालतू में फंस गए, है यस ना। सर. यस सर. यस सर. ये आते हैं सर, ये थॉट्स आते हैं, नेचुरल हैं. बिल्कुल बिकॉज आते हैं, यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एज एवरीवन सेज. बिल्कुल आते हैं। मैं तो सीए के साथ साथ में तैयारी कर रहा था, मेरी फुल टाइम जॉब थी, और जब मेंस एक आध बार क्लियर नहीं हुआ तो लगता था कि यार फालतू में इतनी मेहनत की जरूरत क्या थी, ये जो है यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप अगर बीकॉम करके और फिर आप अटेम्प्ट आप मतलब ड्रैग हो रहे हो नीचे, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए और सिलेक्शन हुआ। तो ये भी शो करता है कि अगर आप पेशेंस रखो, भगवान पे भरोसा रखो, तो कभी भी आपको वो अचीवमेंट मिल सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे, एंड इट इज वर्थ इट। जैसे मैंने आपसे बात की कि सिलेक्शन इट के बाद इज. तो अलग ही माहौल है घर में चारों तरफ, है ना यस सर. बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है सर. यस सर. अच्छा लगता वंडरफुल है. शिवानी, आपसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया हमने, और आपकी कुछ स्पेशल स्किल्स हैं कि यू आर ए वेरी गुड लिसनर ऑल्सो एंड वेरी गुड कम्युनिकेटर, जो आपके इंटरव्यू में हेल्प की है डेफिनेटली। एंड आपकी जो चीयरफुल पर्सनैलिटी है, माय बेस्ट विशेस कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां आपको मिले, और आप इन्हीं सो मच. अपनी पर्सनैलिटी को, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करते हुए लोग अब इस देश के निर्माण में इस नई ऊर्जा से लोगों को नई ऊर्जा दें। आपके एग्जाम्पल से हम भी बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, और आप जहां जाएंगे आप अपने आप में एक जी सर. इंस्पिरेशन है। यूपीएससी में पता है मुझे क्या लगता है कि मैं हर एक एस्पिरेंट से जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे आपकी स्टोरी है, यस तो सर. यूपीएससी एस्पिरेंट में हर एक की अपनी स्टोरी होती है मतलब, और हर एक स्टोरी अपने आप में कंप्लीट मतलब ऐसी स्टोरी होती है कि यार इसके ऊपर हम जितना बोले उतना कम है। यस यस सर. एवरीवन आपकी हैज इट्स स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी. यस यस, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी यूनिक, मतलब जितना मुझे आपसे बात करके पता चला कि फिफ्थ अटेम्प्ट और फोर्थ में प्रीलिम्स फेल, यस सर. तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रास्ट है कि फोर्थ में प्रीलिम्स यस क्लियर सर. नहीं हुआ और फिफ्थ में सिलेक्शन भी हो गया। इंटर में अच्छे इतने अच्छे होंगे. मार्क्स आ गए, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यस फर्स्ट सर. इंटरव्यू। Yes, sir. First interview. I was very हम्म quite nervous, हम्म considering the first interview. और मॉक्स भी नहीं दिए. बट ये था कि आपसे बात करके हम्म ऑप्शनल इज प्रिपेयर्ड. आई वाज satisfied upon that thing कि चलो ऑप्शनल अब प्रिपेयर हो जाएगा. बाकी राइट जीएस राइट, तो अनलिमिटेड है, कितना ही कर लोगे. कितना ही कर लो, राइट 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 राइट। ठीक है शिवानी, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर.